So in this video, we are going to do some numericals on states of matter, of course, but this time I will be solving some ideal gas equation numericals, like the numericals based on ideal gas equation. Okay, now what is ideal gas equation? First of all, हमें पहले ये इसका mathematical formulation लिखना है यहाँ पे, उसके बाद उस पे बेसिक numerical solve करेंगे. Again, in this video, I have chosen some very good numericals from various books. तो ये मेरा जो वीडियो है ये 11th ग्रेड CBSE के लिए तो हेल्पफुल है ही. Along with that, 9th grade ICSE students के लिए भी ये बहुत हेल्पफुल है. So please go through the whole video and understand various types of numericals that I have solved for you in this video. So let's get started. Okay, now what is ideal gas equation? Okay, so ideal gas equation is PV is equal to nRT. ये इसका एक मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन है जिसमें P is the pressure, V is the volume of the gas, N is the number of moles, R is the gas constant, and T is the temperature of the gas, right? So this is one formulation of ideal gas equation. Now there is another formulation of ideal gas equation जो हम अभी जो numericals करने वाली हूँ. In these numericals I will be using that equation. Okay, so that says if P1 is the initial pressure of a gas when its volume is V1 and temperature is T1, then this is equal to, if the temperature changes to, pressure changes to P2 and volume changes to V2 and temperature changes to T2, then P1 into V1 upon T1 is equal to P2 into V2 upon T2. That means if a gas is at initial pressure of P1 and at initial volume of V1 and at an initial temperature of T1, then on changing the pressure to P2, volume to V2, temperature to T2, P1 into V1 upon T1 becomes equal to P2 into V2 upon T2. So this one will be the equation that I am going to use while solving the numericals in this particular video, right? Chaliye. So let's move on. Let's start with the first numerical. So it's a very basic numerical. A gas occupies 500 ml at STP. Now STP, you all know what is STP. STP is standard temperature and pressure conditions. Okay, and what is that? Pressure conditions. That is temperature is equal to 273 Kelvin and pressure is equal to 180 m or 760 mm of mercury, right? So a gas occupies 500 ml at STP. That means is gas ka volume is 500 ml when temperature of this gas is 273 Kelvin and pressure is 180 m or 760 depending upon देखते हैं हमें आगे pressure कौन से units में दिया है. Find the volume occupied by the gas if the pressure is changed to what? It is changed to 300 mm of mercury and temperature is changed to what? 17 degree Celsius. So basically इसको मैं दोबारा से लिखने जा रही हूँ. V1, this is T1, this is P1, this is P2, T2. So I'm writing it again. Initially, the volume was 500 ml when the temperature was 273 Kelvin and the pressure, I'll take in obviously mm, 760 mm. Now, when the pressure became 300 millimeter and the temperature changed to 17 degrees Celsius, which is equal to 17 plus 273, this is equal to 290 Kelvin. We have to calculate the volume. So very simple, apply the ideal gas equation, that is P1 V1 upon T1 is equal to P2 V2 upon T2, right? So this implies V2 is, हमें क्या निकालनी है ना, वॉल्यूम निकालनी है. So final volume, that is V2. So V2 is equal to P1 into V1 into T2 upon T1 into P2. Now this is equal to 760 into 500 into temperature 290 है final
273 हमारा इनिशियल था एंड प्रेशर हमारा था ये, सो ये हो गया कैंसिल आउट एंड इसको जब आप सॉल्व करेंगे देन फाइनल वॉल्यूम विल कम आउट टू बी 134.5 ml. सो दिस इज वन वेरी बेसिक न्यूमेरिकल. हमें इनिशियल टेम्परेचर प्रेशर जो एसटीपी दिए हैं उस पर हमें वॉल्यूम दी है गैस की. अब हमें वॉल्यूम निकालनी है एट अ डिफरेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर विच इज गिवन टू अस. चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल ट्राई करते हैं. सो ये क्या कहता है, अ गैस एट 20 डिग्री सेल्सियस. तो बेसिकली इसका इनिशियल टेम्परेचर इज व्हाट, 20 डिग्री सेल्सियस. मैं इसको पहले ही केल्विन में कर लेती हूँ बिकॉज ऑब्वियसली हम जब ये न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि टेम्परेचर हैज टू बी इन केल्विन. ओके, सो इज हीटेड, a gas at 20 degree Celsius is heated till the pressure triples. So suppose pressure था P, let us suppose. okay, क्या हुआ प्रेशर को, हमने जब इस टेम्परेचर पे जो गैस थी उसको हीट किया, जब हमने इस टेम्परेचर पे गैस को हीट किया द प्रेशर ट्रिपल्ड, मतलब P2 जो हो गया वो 3 times P का हो गया है ना, ट्रिपल हो गया ना, ट्रिपल. And the volume increases by 2/5 of its original value. So suppose volume थी V, let us suppose, and now what is the new volume, 2/5 increases by 2/5 of its original value. तो जैसे मैंने पहले बताया था increases by का मतलब original value में 2/5 of the original value add करो and this gives it 7/5 V. So हमारी V2 क्या हो गई, ये हमें क्या निकालना है, calculate the final temperature. So calculate the temperature at which this happened. ठीक है, सो हमें वो निकालना है. सो नथिंग, सेम आइडियल गैस इक्वेशन लगाइए, P1 V1 upon T1 is equal to P2 V2 upon T2. This implies P1 was P, V1 is V, T1 is 293, P2 is 3P and V2 is 7/5V. This upon हमें T2 निकालना है. So इससे P से P कैंसिल हो गया, V से V कैंसिल आउट हो गया. So this became 1 upon 293 is equal to, यहाँ से 7 into 3 21 upon 5 into T2. This implies T2 is equal to 21 into 293 upon 5, which will come out to be 1230.6 केल्विन आएगा जब आप कैलकुलेट करेंगे इसे. और इसको अगर हमें डिग्री सेल्सियस में लिखना हो तो दैट विल बी 957.6 डिग्री सेल्सियस. कैसे आया, -273 करके ये आ गया 957.6 डिग्री सेल्सियस. सो दिस इज द टेम्परेचर एट विच द प्रेशर जब ट्रिपल हुआ तो वॉल्यूम आपकी जो है वो इनिशियल वॉल्यूम का 2/5 उससे मतलब इंक्रीजेस बाय 2/5 ऑफ द ओरिजिनल वॉल्यूम, राइट. सो ये हो गया हमारा न्यूमेरिकल सेकंड. चलिए वी विल सॉल्व थर्ड न्यूमेरिकल ऑन दिस. सो थर्ड न्यूमेरिकल इज 892 cc, that is centimeter cube of a gas is stored at -50 degrees Celsius, okay, and 50 mm of mercury. Calculate the volume if the temperature increases by 57 degrees Celsius and the pressure increases by 20%. So मोर और लेस सेम टाइप के हैं बट वेराइटी इन द सेंस कि आपको प्रैक्टिस मिल जाएगी. एक तो अगर आप और ज्यादा न्यूमेरिकल्स, जितने ज्यादा इस टाइप के न्यूमेरिकल्स करेंगे, बिकॉज थोड़ी थोड़ी लैंग्वेज ट्विस्ट करके हम ये न्यूमेरिकल्स हमें दिए जाते हैं. सो अनदर आई मीन न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 2 जैसा ही है ये न्यूमेरिकल. सो 892 cc of gas. So volume of the gas, that is V1, is what, 892 centimeter cube. It is stored at -50 degrees Celsius. So temperature initially is -50 degree Celsius. Okay, and pressure is 540 mm of mercury. Now what happened that calculate the volume, हमें V2 निकालनी है when if the temperature increases by 57 degree Celsius. That means जो initial temperature है उसमें 57 ऐड करो.
So this is the increase in temperature. This is the temperature that has achieved. That means कि temperature increases by 57. मतलब if it was initially -50, so by 57 degree मतलब 57 उसमें add करना पड़ेगा. And pressure increases by 20%. So P2 is equal to P1 plus 20% of P1, right? So पहले हम P2 निकाल लेते हैं. P2 is equal to P1 was what is given 540 plus 20 upon 100 into 540. So ये आ जाएगा कैंसल आउट होके हमारे पास 648 mm ऑफ मर्करी. सो प्रेशर आ गया हमारे पास, आई मीन P2 आ गया हमारे पास, P1 है हमारे पास. अब हम टेम्परेचर्स को केल्विन स्केल में चेंज कर लेते हैं. सो T1 is equal to -50 degree Celsius. This is equal to -50 plus 273. This is equal to 223 Kelvin. And T2 is equal to 7 degrees Celsius. This is equal to 7 plus 273. This is equal to 280 Kelvin. So V1 है, T1 है, P1 है हमारे पास. V2 हमें निकालना है. We have T2 and P2. So let us use ideal gas equation and solve the numerical. Okay, just a second. Let us solve the numerical using, हमें ये सब वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करके आइडियल गैस ये जो हमने निकाली है यहाँ पे, अब P1 V1 हमें जो गिवन है और जो हमने कैलकुलेट किए हैं उनको यूज करके अब हम निकालेंगे वैल्यू ऑफ V2. सो लेट अस राइट फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज P1 540 mm, व्हाट इज V1 892 centimeter cube, what is T1 it is 223 Kelvin, what is P2 हमने क्या कैलकुलेट किया है 648 mm, V2 we have to calculate and T2 क्या आया हमारा 280 Kelvin. So that's it. Substitute in this equation and calculate the value of T2. एक बार V2 एक बार आपने इनिशियली सब कुछ सही कैलकुलेट किया है देन इसके बाद तो बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन रह जाती हैं. सो V2 इज इक्वल टू अगेन वही P1 V1 इंटू T2 अपॉन P2 into T1. What is P1? 540. What is V1? 892. What is T2? 280. P2 648. T1 223. So ये आप कैलकुलेशन करेंगे तो इसका आंसर आएगा 933.33 centimeter cube. So this is the volume of the gas after changing temperature and pressure. ठीक है, चलिए let's move to fourth numerical. At 0 degrees Celsius and 760 mm mercury pressure, a gas occupies a volume of 100 centimeter cube. मतलब टेम्परेचर क्या था 0 डिग्री सेल्सियस इनिशियल. सो लेट मी राइट इट इनटू केल्विन स्केल, दैट इज 273 केल्विन. द प्रेशर वाज 760 mm. एट दैट टाइम वॉल्यूम क्या थी 100 centimeter cube. The Kelvin temperature of the gas is increased by 1/5 while the pressure is increased by 1.5 times. पहले तो देखते हैं टेम्परेचर कितना इंक्रीज किया. टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड बाय 1/5. सो T2 इज इंक्रीज्ड बाय 1/5. दैट मीन्स कि T2 इज इक्वल टू जो इनिशियल टेम्परेचर था T1 इसका 1/5 उसमें ऐड करो. सो दैट इज 273 प्लस 1/5 into 273 and upon calculation it will come out to be 327.6 Kelvin. Okay, and now what about pressure? The pressure is increased. P2 क्या हुआ है, नो नॉट T2, हमें इंक्रीज किया है T1 को ना, तो जिससे हमारा T2 आया. तो सिमिलरली प्रेशर P2 क्या आएगा, P1 is increased by 1.5 times, that is equal to 3/2 times.
of P. So P2 is equal to P1 plus 3 by 2 times P1. So this is equal to 760 plus 3 by 2 into 760. This cancel out होके ये हमारी वैल्यू आ जाएगी 1900 mm. So अब हमारे पास क्या क्या है, अब हमारे पास P1 है which is equal to 760 mm. We have V1 that is equal to 100 centimeter cube. We have T1 that is equal to 273 Kelvin. We have P2 जो हमने कैलकुलेट किया है 1900 mm. हमें V2 निकालना है. टेम्परेचर हमने गिवन कंडीशंस के अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर लिया है, दैट इज 327.6 केल्विन. सो यहाँ से अप्लाइंग आइडियल gas equation again, that is P1 V1 upon T1 is equal to P2 V2 upon T2. This implies V2 हमारा आ जाएगा, वही मैं वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करूँ डायरेक्टली. सो P1 is 760 into 327.6, that is T2 100 upon 273 into 1900. तो ये आएगा अपॉन कैलकुलेशन 48 सेंटीमीटर क्यूब. सो दैट इज द वॉल्यूम एट दिस पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड प्रेशर. देखो जनरली क्या होता है, वॉल्यूम इंक्रीज होती है व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर, बट if the increase in pressure is way more than the increase in temperature, then obviously volume will reduce. ठीक है, बिकॉज प्रेशर का इंक्रीज इतना ज्यादा है, क्योंकि प्रेशर एंड वॉल्यूम कैसे हैं, प्रेशर एंड वॉल्यूम आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल एंड वॉल्यूम एंड टेम्परेचर आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. अब दोनों साइड बाय साइड चल रहे हैं. सो इफ द इंक्रीज इन प्रेशर इज मच मोर देन द इंक्रीज इन टेम्परेचर, देन ऑब्वियसली वॉल्यूम विल रिड्यूस. ठीक है, तो अभी हम करेंगे नेक्स्ट न्यूमेरिकल विच इज अगेन अ वेरी इजी वन. चलिए, बट दिस विल गिव यू अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस about these type of numericals. Okay, calculate the final volume of the gas X if the original pressure of the gas is at STP is doubled and temperature increased 3 times. step by step करते हैं. हमें कोई गैस है X, हमें नहीं पता कौन सी गैस है वो, हमें क्या करना है, इसकी फाइनल वॉल्यूम निकालनी है. if original pressure of the gas at STP, so at first of all at STP pressure क्या होता है, so pressure is equal to 760 mm is doubled. इसको डबल कर दिया. so P2 को क्या कर दिया हमने, डबल, यानी कि 2 into 760 हो गया हमारा फाइनल प्रेशर. एंड टेम्परेचर इंक्रीज्ड 3 times. so टेम्परेचर एट STP क्या होता है, is this is equal to 273 केल्विन. अब हमने टेम्परेचर क्या कर दिया है, 3 times कर दिया. ठीक है, हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम. सो लेट अस सपोज, हमें वॉल्यूम तो एसटीपी पे भी पता नहीं है. लेट अस सपोज द वॉल्यूम एट एसटीपी इज इक्वल टू वी. सो दैट मीन्स देयरफॉर हमारा जो V1 है वो क्या हो गया, V. हमारा T1 है 273 केल्विन, P1 है 760 mm. ठीक है, हमारा V2 हमें निकालना है. T2 क्या है, 3 times 273 एंड प्रेशर क्या है, 2 times 760. तो बस सब्स्टिट्यूट कीजिए आइडियल गैस इक्वेशन में. P1 V1 upon T1 is equal to P2 V2 upon T2. This implies P1 क्या है, 760, V1 हमने V माना है. सो नहीं भी मानेंगे तो भी चल जाएगा, यहाँ पे V1 को V1 भी ले सकते हो. एंड T1 is 273 is equal to P2 कितना है, 2 into 760, this into V2 upon 3 into 273. 760 से 760 कैंसिल आउट हो गया, 273 से 273. सो दिस गेव अस V is equal to 2 by 3 V2. This implies V2 is equal to 3 by 2V. So basically the volume, final volume becomes 3 by 2 times बोल लो, और 1.5 times original
वॉल्यूम। ठीक है ना, दिख रहा है ना, 3/2 times is what? It is 1.5 times. So basically the final volume becomes 1.5 times of the original value on changing temperature and pressure to the given conditions. Coming to the next numerical. 500 centimeter cube of hydrogen is collected over water at 17 degrees Celsius and 750 mm mercury pressure. Calculate the volume of the dry gas at STP. The water vapor pressure at 17 degrees Celsius is 14 mm of mercury. अब मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जब हम गैसेस कलेक्ट करते हैं, मतलब प्रिपरेशन होती है उनकी, सो दे आर कलेक्टेड ओवर वाटर। तो जो गैस का प्रेशर आता है ऐसे करने से, दैट प्रेशर इज नॉट द एक्चुअल प्रेशर ऑफ द गैस, दैट मीन्स द प्रेशर ऑफ द ड्राई गैस वो नहीं होता। सो द प्रेशर दैट इज गिवन, जो हमें उस वे से निकलता है, दैट प्रेशर इज द प्रेशर ऑफ द ड्राई गैस प्लस द प्रेशर ऑफ द वाटर वेपर्स। सो जो हमें यहाँ पे कहा है कि 50 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ हाइड्रोजन इज कलेक्टेड ओवर वाटर एट 17 डिग्री सेल्सियस। सो इसको मैं पहले सिंपली लिख लेती हूँ कि V1 है हमारा, कोई गैस है, हाइड्रोजन गैस है, जिसको हमने 50 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम कलेक्ट किया है एट टेम्परेचर 17 डिग्री सेल्सियस विच इज इक्वल टू 290 केल्विन। उसका प्रेशर क्या आया है? प्रेशर हैज कम आउट टू बी 750 mm ऑफ मर्करी। ठीक है, बट ये जो प्रेशर है ये नॉट, दिस इज नॉट द प्रेशर ऑफ ड्राई गैस, दिस इज नॉट द प्रेशर ऑफ ड्राई गैस, दिस इज इक्वल टू द प्रेशर ऑफ ड्राई गैस प्लस द प्रेशर ऑफ वाटर वेपर, जिसको हम एक्वस टेंशन भी कहते हैं। तभी हमें यहाँ पे दिया है दी वाटर वेपर प्रेशर एट 17 डिग्री सेल्सियस इज 14 mm ऑफ मर्करी। सो प्रेशर ऑफ वाटर वेपर्स इज गिवन एट द सेम टेम्परेचर 17 डिग्री सेल्सियस पे 14 mm दिया है। ठीक है, अब हमें ये क्वांटिटीज यूज करके, जो हमें वैल्यूज दिए यूज करके हमें वॉल्यूम ऑफ ड्राई गैस एट एसटीपी निकालना है। इसमें कुछ कोई बहुत टफ चीज नहीं है, इट जस्ट दैट कि जो ये वैल्यू दी है ना, कुछ बच्चे ध्यान नहीं देते कि हमें यहाँ पे एक्वस टेंशन दी है, तो हमें बोला भी यही है कि कैलकुलेट दी वॉल्यूम ऑफ ड्राई गैस। सो दैट मीन्स पहले हमें प्रेशर ऑफ ड्राई गैस निकालना है माइनस करके वाटर वेपर का प्रेशर इस वैल्यू में से, एंड देन उन वैल्यूज को यूज करके हम वॉल्यूम एट एसटीपी निकालेंगे, राइट। सो प्रेशर ऑफ ड्राई गैस is equal to 750 minus 14, which is equal to 736 mm of mercury, right? So अब यहाँ से वैल्यूज ध्यान से लिखिए, प्रेशर हमारा P1 आ गया गैस का 736 mm, वॉल्यूम है हमारे पास 50 सेंटीमीटर क्यूब कलेक्ट हुई है, किस टेम्परेचर पे? 290 केल्विन पे। हमें किस पे वॉल्यूम निकालनी है? हमें निकालनी है एट एसटीपी। सो एसटीपी पे प्रेशर क्या होता है? 760 mm। वॉल्यूम क्या करनी है? हमें कैलकुलेट करनी है। टेम्परेचर क्या होता है एसटीपी पे? 273 केल्विन। सो इन सब वैल्यूज को लेके आइडियल गैस इक्वेशन के फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट कीजिए और निकाल लीजिए। सो I'm writing it again, P1 V1 over T1 is equal to P2 V2 upon T2, right? So P1 क्या है? इनिशियल प्रेशर क्या था? 736 आया, जो हमने ड्राई गैस का कैलकुलेट किया है। वॉल्यूम क्या थी इसकी? 50। टेम्परेचर क्या था? किस टेम्परेचर पे कलेक्ट किया है? 290 पे। और हमें एसटीपी पे प्रेशर 760 होता है, वॉल्यूम हमें निकालनी है, टेम्परेचर 273 होता है। सो दिस इज इक्वल टू 736 इंटू, ये 0 से 0 कट गया, सो दिस इज इक्वल टू 5 इंटू 273 अपॉन 29 इंटू 7। ओके 60 ये होगा ना, V2 736 इंटू 5 इंटू 273, यस। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे, दिस वैल्यू विल कम आउट 45.58 सेंटीमीटर क्यूब, जिसको हम अप्रोक्सीमेट करके लिख सकते हैं 45.6 सेंटीमीटर
क्यूब। सो अगर आपको बात समझ आ जाती है ना इनिशियली, तो उसके बाद तो सिर्फ फॉर्मूला में आपको वैल्यूज पुट करनी है, बट वो वैल्यूज आपको एकदम सही कैलकुलेट करनी पड़ेंगी। आपको क्वेश्चन को समझना पड़ेगा कि व्हाट आर दे एक्चुअली आस्किंग, हमें क्या दिया है। मांगा तो एक्चुअली उन्होंने सिंपल होता है, वॉल्यूम और टेम्परेचर, बट क्या कंडीशंस हैं वो सब आपको पहले समझनी चाहिए। एंड आफ्टर दैट यू हैव टू यूज अ सिंपल फॉर्मूला एंड देन सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज एंड डू योर कैलकुलेशंस एंड कैलकुलेट द आंसर। ठीक है, चलिए अब एक डिफरेंट टाइप का न्यूमेरिकल करते हैं। बट मैंने जो अब मैं न्यूमेरिकल करा रही हूँ, क्वेश्चन नंबर 7 जो मैं करा रही हूँ, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन आई थिंक मैंने बॉयल्स लॉ में कराया था। तो अभी मैं इसको यहाँ पे करा रही हूँ, आपको आना चाहिए ये, लेकिन इस एक और न्यूमेरिकल से आपको प्रैक्टिस हो जाएगी इस टाइप के न्यूमेरिकल्स की, क्योंकि ये जनरली आ जाते हैं। ओके, बिकॉज दे आर नॉट द स्ट्रेट वन जो हम लोग बिल्कुल एकदम सिंपल न्यूमेरिकल्स करते हैं, दे आर नॉट दैट सिंपलर वन। आई मीन सिंपल होते हैं बट थोड़ा सा समझना पड़ता है इनको, थोड़ा सा। ठीक है, तो चलिए, अ गैस इज टू बी फिल्ड फ्रॉम अ टैंक ऑफ कैपेसिटी 10,000 लीटर। फिर मैं यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम बना लेती हूँ। सो देयर इज अ टैंक, मेरा डायग्राम माइट नॉट बी सो गुड। ओके, सो ये एक टैंक है, दिस इज अ टैंक ऑफ 10,000 लीटर कैपेसिटी का। हमें क्या करना है, अ गैस इज टू बी फिल्ड, इसमें कोई गैस है, ठीक है, इसको फिल करना है इनटू सिलेंडर्स, इससे सिलेंडर्स फिल करने हैं, छोटे छोटे सिलेंडर्स फिल करने हैं। कितने वो मुझे नहीं पता, वही हमें कैलकुलेट करना है एक्चुअली। सो वी हैव टू फिल स्मॉल सिलेंडर्स जिनकी हर एक की कैपेसिटी है 10 लीटर। ठीक है, नाउ प्रेशर इनसाइड द टैंक, इस टैंक में प्रेशर कितना है, 800 mm ऑफ मर्क्यूरी, एंड टेम्परेचर कितना है इसमें, -3 डिग्री सेल्सियस। आगे अब क्या कह रही है ये, व्हेन द सिलेंडर इज फिल्ड, तो जब इन सिलेंडर्स को फिल करते हैं, तो टैंक है हमारा, ये हमारे क्या है, सिलेंडर्स हैं। तो जब इन सिलेंडर्स में गैस को फिल करते हैं ना, तो उनके अंदर प्रेशर क्या शो, प्रेशर का जो जो मीटर होता है, प्रेशर गेज जिसे बोलते हैं, वो क्या रीड करता है कि इनके अंदर प्रेशर कितना है, 400 mm ऑफ मर्क्यूरी एट व्हाट टेम्परेचर, टेम्परेचर इज इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस। यानी कि इन सभी में यही वैल्यूज हैं टेम्परेचर एंड प्रेशर की। मतलब हमें बेसिकली छोटे छोटे सिलेंडर्स जो फिल करने हैं, उनमें जो गैस फिल करनी है वो हमें 400 mm और 0 डिग्री सेल्सियस पे फिल करनी है। सो बेसिकली जो ये टैंक से जो ये 10,000 लीटर गैस जा रही है, जो पहले किस प्रेशर पे है, 800 mm पे एंड टेम्परेचर -3 डिग्री सेल्सियस पे, ये जब इन सिलेंडर्स में जाएगी तो इस गैस का प्रेशर हो जाएगा 400 mm एंड टेम्परेचर हो जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, सो जैसे मैंने पहले न्यूमेरिकल किया था, अभी इसमें भी वही करेंगे हम। इसमें मैंने ऐसा न्यूमेरिकल बता रही हूँ, मैंने बॉयल्स लॉ में करवाया था, आई टोल्ड यू। ठीक है, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, पहले हम इस गैस की जो ये वॉल्यूम है 10,000 लीटर, ये कब है, जब प्रेशर 800 mm है, जब टेम्परेचर -3 डिग्री सेल्सियस है। सो व्हाट वी विल डू, वी विल कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ दिस गैस इन द टैंक when it is at the pressure of 400 mm and at the temperature of 0 degree Celsius. So this is first thing to do. जब हम ये निकाल लेंगे, यानी कि ये 10,000 लीटर जो गैस है ये कितनी बन गई जब ये इस प्रेशर और टेम्परेचर पे जाएगी, उसके बाद तो हम हर एक सिलेंडर की, हमें 10 लीटर वॉल्यूम का बोला है, तो हम निकाल सकते हैं कि जो भी हमारी वॉल्यूम आएगी उससे हम कितने सिलेंडर फिल कर सकते हैं अगर एक सिलेंडर की कैपेसिटी 10 लीटर है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, लेट अस फर्स्ट कैलकुलेट what will be the volume of 10,000 liter of the gas in the tank at what temperature, at temperature 0 degree Celsius and pressure 400 mm। और इस गैस का इनिशियल टेम्परेचर प्रेशर क्या था, सो अगर मैं टैंक की बात करूं, टैंक में इन टैंक क्या था टेम्परेचर, टेम्परेचर वाज -3 डिग्री सेल्सियस एंड व्हाट वाज द प्रेशर, pressure was
800 mm एंड वॉल्यूम क्या थी गैस की, क्या है एक्चुअली अभी तक 10,000 लीटर। हमें वॉल्यूम कब कैलकुलेट करनी है, जब हम इनको सिलेंडर्स में फिल करेंगे, इन सिलेंडर। तब टेम्परेचर क्या है 0 डिग्री सेल्सियस एंड प्रेशर क्या है 400 mm। ठीक है, सो पहले तो अपना T1 को चेंज करो इन डिग्री सेल्सियस, सॉरी इनटू केल्विन। सो दिस विल बिकम 270 केल्विन एंड हमारा T2 हो जाएगा 273 केल्विन। ठीक है, तो चलिए लगाइए आइडियल गैस इक्वेशन, P1V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2V2 अपॉन T2। सो एक तरफ टैंक एक तरफ सिलेंडर। सो टैंक का प्रेशर है, में गैस का प्रेशर है 800, एट दैट टाइम इसकी वॉल्यूम है 10,000, टेम्परेचर है 270 एंड जब प्रेशर हमने कर दिया 400 तो हमें वॉल्यूम निकालनी है और टेम्परेचर हमने कर दिया है 273। सो ये कैंसल आउट हो जाएगा, ये 400 इस ये 2, ये 0 से हो जाएगा। सो बेसिकली यहाँ से अगर मैं करूँ तो V2 इज इक्वल टू आ जाएगा 2000 इंटू 273 अपॉन 27, जिसकी वैल्यू आएगी 20222.2 लीटर। सो बेसिकली जो गैस 10,000 लीटर थी एज दिस टेम्परेचर एंड प्रेशर, वो इस टेम्परेचर एंड प्रेशर पे बढ़ जा रही है। क्यों बढ़ रही है, बिकॉज टेम्परेचर पहले कम था, टेम्परेचर बढ़ गया, प्रेशर पहले ज्यादा था, प्रेशर कम हो गया, सो ऑब्वियसली गैस की वॉल्यूम इंक्रीज हो गई। सो दिस इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस। सो बेसिकली टोटल वॉल्यूम of the gas to be transferred, of the gas to be transferred at 0 degree Celsius and 400 mm pressure is equal to 20222.2 लीटर। ठीक है, अब एक सिलेंडर की कैपेसिटी कितनी दी है 10 लीटर। सो अगर 10 लीटर गैस एक सिलेंडर में आती है तो इतने लीटर गैस कितने सिलेंडर्स में आएगी, वेरी सिंपल। सो इफ 10 liter of the gas, if 10 liter is the capacity of is equal to one cylinder, right, then 20222.2 liter is the capacity of how many cylinder, 1 by 10 into 20222.2, this is equal to 2022.22 approximately 2022, because सिलेंडर्स फ्रैक्शन में तो आएंगे नहीं, सो इतने सिलेंडर्स फिल कर सकते हैं। सो देयरफॉर नंबर ऑफ सिलेंडर्स दैट कैन बी फिल्ड इज इक्वल टू 20, एक सेकेंड मैं इसको अगेन लिख देती हूँ क्लियरली, इज इक्वल टू 2022, oh god, 1 second, is equal to 2022. So this is the number of cylinders that can be filled from that tank, जिसकी हमें सारा कुछ जो भी वैल्यूज दी थी हमने निकाल लिया, कितने सिलेंडर उससे फिल हो सकते हैं। तो जो मैंने ये डायग्राम बना था इसमें ये सारे कितने सिलेंडर्स आ गए 2022 आ गए ये नंबर में। ठीक है, तो चलिए मैं इसको इरेज कर देती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो व्हेन यू गो थ्रू द वीडियो। ओके, नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है हमारा। सो नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज द प्रेशर ऑफ, अभी थोड़ा डिफरेंट है न्यूमेरिकल, इसमें हम मोल कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, इसके साथ ही कुछ और न्यूमेरिकल्स मैं अपने नेक्स्ट वीडियो ऑन आइडियल गैस इक्वेशन में लेके आऊंगी जिसमें आपको और क्लैरिटी आएगी, बट ये जो मैं करा रही हूँ यहाँ पे ये दे आर वेरी बेसिक, सो थोड़े से कॉम्प्लेक्स होंगे नेक्स्ट वीडियो में, बट दे विल बी मोर इन्वॉल्विंग मोल कंसेप्ट, ओके, एंड आइडियल गैस इक्वेशन। तो चलिए अभी पहले ये टाइप करते हैं, द प्रेशर ऑफ 1 मोल ऑफ अ गैस एट STP इज डबल्ड and temperature is raised to 546 Kelvin. What is the final volume of the gas? पहले तो आपको पता होना चाहिए what is the volume of a gas, 1 mole of a gas at STP. So क्या होती है volume of 1 mole
of a gas at STP is 22.4 लीटर। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, ये मोल कंसेप्ट में हमने पढ़ा हुआ है। सो इन्होंने क्या कहा, द प्रेशर ऑफ 1 मोल ऑफ अ गैस एट STP। पहले तो बात है STP पे प्रेशर क्या होता है, प्रेशर इज 760 mm, ठीक है, एंड टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर इज 273 केल्विन। क्या किया है इसमें हमने, pressure is doubled and temperature is raised to, pressure is doubled, that means 2 into 760 mm कर दिया, and temperature is raised to 546 केल्विन कर दिया। सो टेम्परेचर भी डबल ही कर दिया, ठीक है। सो ये कह रहे हैं कि व्हाट इज द फाइनल वॉल्यूम ऑफ द गैस। सो हमें क्या करना है, हमें V2 निकालना है, V1 हमें पता है, दिस इज V1। सो वेरी सिंपल, P1 is 760 mm, V1 is 22.4 liters, we know from mole concept, temperature is 273 Kelvin, pressure क्या किया है, डबल कर दिया है, ठीक है। वॉल्यूम हमें फाइनल निकालनी है, जब टेम्परेचर भी एक्चुअली डबल किया हुआ है, वो 546 केल्विन इज डबल ऑफ 273। सो अप्लाइंग आइडियल गैस इक्वेशन, P1 V1 upon T1 is equal to P2 V2 upon T2. This implies 760 into 22.4 upon temperature is 273, pressure क्या किया है, डबल, that is this, into V2 निकालनी है, and oops, this is equal to 546। so यहाँ से क्या होगा, 760 से 760 कट जाएगा, ठीक है, और ये 273 हो जाएगा, 273 से 273 कट जाएगा, तो हमारे पास वॉल्यूम जो आएगी दैट विल बी 22.4 लीटर, दैट मीन्स सेम वॉल्यूम। वाई, क्यों चेंज नहीं हुई वॉल्यूम, वाई द वॉल्यूम इज सेम, वाई, बिकॉज we have increase the pressure as well as temperature equally। हमने 2 times ही pressure बढ़ाया है और 2 times ही temperature बढ़ाया है। we know that volume temperature बढ़ाने से बढ़ती है और pressure बढ़ाने से decrease होती है। अब अगर टेम्परेचर डबल किया है तो वॉल्यूम डबल होनी चाहिए थी, बट प्रेशर भी डबल कर दिया, इसलिए देयर इज नो चेंज इन वॉल्यूम बिकॉज वी हैव इंक्रीज्ड the pressure and temperature equally, that is 2 times, that just a second, that is 2 times। तो हमने प्रेशर और टेम्परेचर को दोनों को एक साथ बढ़ाया है, बराबर में बढ़ाया है, दैट्स व्हाई देयर इज नो चेंज इन द वॉल्यूम बाय चेंजिंग द टेम्परेचर एंड pressure in this case। Next numerical, calculate the volume occupied by 2 gram of hydrogen at 27 degrees Celsius and 4 atm if at STP it occupies 22.4 लीटर। वो तो हमें पता है कि STP पे कोई भी गैस 22.4 लीटर ऑक्यूपाई करती है, बट उसका 1 मोल, एंड 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन इज व्हाट, 2 gram of hydrogen is equal to 1 mole of hydrogen, right? Because 2 is the molecular weight of hydrogen. So that means 2 gram is equal to 1 mole of hydrogen. That means कि 1 mole of hydrogen occupies 22.4 liters of volume at STP। हमें क्या निकालना है, इतनी ही अमाउंट की गैस का वॉल्यूम निकालना है एट 27 डिग्री सेल्सियस एंड 4 atm प्रेशर। सो वॉल्यूम of 2 gram of hydrogen at STP is equal to 22.4 liters, ठीक है। so volume is equal to 22.4 लीटर। प्रेशर क्या होता है STP पे, प्रेशर इज 760 mm, टेम्परेचर इज 273 केल्विन। हमें क्या निकालना है, 2 ग्राम ऑफ द गैस का वॉल्यूम निकालना है
एट प्रेशर इज इक्वल टू 4 ATM। अब प्रेशर यहाँ पे ATM पे में दिया है ना, तो मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे इसको मैं ATM में ले रही हूँ। 760 mm is equal to 1 ATM and temperature is equal to 27 degree Celsius, 27 degree Celsius which is equal to 300 Kelvin। ठीक है जी। तो अभी हम क्या करेंगे, आइडियल गैस इक्वेशन लगाएंगे। P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। P1 is 1, V1 is 22.4, this is 273, this is 4, V2 we have to calculate, this is 300, ये कैंसल आउट होके आ गया 75। सो दिस विल बिकम V2 आ जाएगा हमारे पास, इसको रीअरेंज करके इक्वेशन को 22.4 इंटू 75 अपॉन 273। सो V2 ऑन कैलकुलेटिंग विल बी इक्वल टू 6.15 लीटर्स। ठीक है, तो ये हो गया हमारा न्यूमेरिकल नंबर 9। अब लास्ट न्यूमेरिकल ऑफ दिस टाइप and this video also, 22.4 liter of a gas weighs 70 gram at STP. Calculate the weight of the gas if it occupies a volume of 20 liter at 27 degree Celsius and 700 mm pressure. So क्या वॉल्यूम है, वॉल्यूम is equal to 20 liter at temperature 27 degree Celsius and pressure 700 mm। तो इस गैस का 70 ग्राम 22.4 लीटर ऑक्यूपाई करता है, या 22.4 लीटर गैस का 70 ग्राम वे करता है। तो हमें ये बताना है कि वेट ऑफ द गैस इफ इट ऑक्यूपाइज दिस वॉल्यूम एट दिस टेम्परेचर एंड दिस pressure. So first of all, let us calculate the volume occupied by 20 liter of gas at STP. ये तो 22.4 लीटर का वेट तो पता चल गया हमें 70 ग्राम है। अगर हम निकालें 20 लीटर ऑफ गैस जो है इसकी क्या वॉल्यूम होती है एट एसटीपी पे, तो हम उसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या निकाल लेंगे, उसका वेट निकाल लेंगे एट एसटीपी पे, क्योंकि हमें गिवन है 22.4 लीटर ऑफ अ गैस वेज 70 ग्राम एट एसटीपी। सो लेट अस फर्स्ट calculate the volume of 20 liter of this gas at STP। पहले STP पे उसका वॉल्यूम तो निकालेंगे, 20 लीटर कितना बन जाता है एट STP, फिर हम उससे निकाल सकते हैं वो कितना वे करता है एट STP पे, क्योंकि हमें एक चीज गिवन है यहाँ पे। ठीक है, सो लेट अस फर्स्ट कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ 20 लीटर ऑफ दिस गैस एट STP। सो पहले इसके लिए इनिशियली प्रेशर, पहला प्रेशर क्या था इसका 700 mm था। ठीक है जी, वॉल्यूम 20 लीटर, टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस विच इज इक्वल टू 300 केल्विन, एंड एट STP प्रेशर क्या होता है 760 mm। वॉल्यूम हमें निकालनी है, टेम्परेचर होता है 273 केल्विन। सो अप्लाई आइडियल गैस इक्वेशन, P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। सो P1 इज 700, V1 is 20, T1 is 300, 760, V2 कैलकुलेट करना है, दिस इज 273, ये इससे कट गया, ये इससे कैंसिल आउट हो गया। सो ये बन जाएगा 14/3 इज इक्वल टू 76V अपॉन 273। दिस implies V is equal to 14 into 273 by 3 into 76। सो ये आएगा हमारा 16.76 लीटर। सो दिस गैस जो 20 लीटर थी गिवन कंडीशंस, 700 mm प्रेशर एंड 27 डिग्री सेल्सियस, वो एसटीपी पे कितना वॉल्यूम आ रहा है उसका 16.76 लीटर। और इसी गैस का 22.4 लीटर एसटीपी पे क्या वे करता है 70 ग्राम। ये हमें गिवन है कि 22.4 लीटर ऑफ दिस गैस वेज 70 ग्राम एट एसटीपी। सो हम निकाल लेंगे इतनी लीटर वॉल्यूम का क्या वेट होगा। सो
if 22.4 liter of this gas at STP weighs equal to 70 gram, then कितना आया हमारा 17.6 liter of this gas as STP will weigh, and STP will weigh is equal to 70 upon 22.4 into 16.76 and ये आएगा 52.38 grams. So this is the weight of this volume of the gas at STP. ये हमारा मास ऑफ द गैस आ गया एट STP, दिस पर्टिकुलर वॉल्यूम का हमने कैलकुलेट कर लिया. सो आई होप आपको अब इस तरह के न्यूमेरिकल्स क्लियर हो गए होंगे. अभी मैं इस पे और न्यूमेरिकल्स भी कराऊंगी इन माय नेक्स्ट वीडियो टू गिव यू मोर प्रैक्टिस. सो बाय द टाइम गो थ्रू माय होल वीडियो, प्रैक्टिस ऑल ऑफ दीज योरसेल्फ. ये अपने आप खुद से सबके सब ट्राई कीजिए एक बार जाने के बाद, एंड आई थिंक उसके बाद आपको काफी क्लैरिटी आ जाएगी ऑन आइडियल गैस इक्वेशन.